Firstly, we will revise the formulas in short, then we will continue with the further part of the session. So how many trigonometric ratios are there? How many trigonometric ratios are there? Correct. There are 6 trigonometric ratios. Who will tell me the formula of sine theta? Opposite side upon hypotenuse. Okay, sine theta is what? It is opposite side upon hypotenuse. यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे भी थीटा होगा, ओके, जो भी एंगल थीटा होगा उसके सामने वाली साइड, तो उसके सामने वाली साइड है सपोज ए बी. ओके, तो ए बी अपॉन ए सी. सो साइन थीटा फॉर दिस ट्रायंगल व्हाट इट विल बिकम? ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. Who will tell me the formula for cos theta? What is cos theta? It is adjacent side upon hypotenuse. Correct. So second trigonometric ratio is what? Adjacent side upon hypotenuse. Okay. तो adjacent यानी ये theta को लग के जो side है, that is the adjacent side. So BC is the adjacent side and hypotenuse we know that AC is the hypotenuse of this right angle triangle. Hypotenuse आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड hypotenuse होती है. So for this triangle, what will be the value of cos theta? Then it will be BC upon AC. Okay. Next is tan theta. अभी tan theta जो है ना, वो रेशो है. किसका रेशो है? साइन थीटा और cos थीटा का रेशो है. Tan theta is nothing but the ratio of sin theta and cos theta. So sin theta we are having the formula that is opposite side upon hypotenuse. Cos theta we are having the formula adjacent side upon hypotenuse. तो यहाँ पे अगर मैं रेशो ले लूंगा तो ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan theta. Okay, now for this triangle, same here, hypotenuse AC will get cancelled. What we will get? AB upon BC. So tan theta for this triangle is what? It is AB upon BC. Who will tell me what is cot theta? Cot theta क्या है? Yes, it is correct that it is adjacent side upon opposite side, but cot theta is the reciprocal of what? It is the reciprocal of tan theta. Correct. Cot theta is the reciprocal of tan theta. Okay, cot theta is the reciprocal of tan theta. तो tan theta का जो भी फॉर्मूला है उसका एग्जैक्टली रिवर्स करना है. तो एडजेसेंट साइड देखो डिनोमिनेटर में था tan theta के फॉर्मूला में, तो एडजेसेंट साइड न्यूमरेटर में आ जाएगा फॉर cot theta. अपोजिट साइड जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos theta? What is the reciprocal of cos theta? Yes, correct. It is sec theta. Okay. The reciprocal of cos theta is sec theta. यानी cos theta का जो फॉर्मूला है adjacent side upon hypotenuse, ये जो फॉर्मूला है इसका बस उल्टा हो जाएगा hypotenuse upon adjacent side. Because what? Because sec theta is nothing but the reciprocal of cos theta. और ध्यान में कैसे रखना है, s के साथ c रेसिप्रोकल में आता है. ओके, एस के साथ एस कभी रेसिप्रोकल में नहीं आएगा. आप अगर ऐसा देखोगे सेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, एस और एस कभी रेसिप्रोकल में नहीं आएगा. दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज करेक्ट. फॉर कोसेक थीटा ऑल्सो यू कैन सी 1 अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे देखो एस और सी रेसिप्रोकल में आ रहा है. देखो, इन दिस वे यू विल कीप इन माइंड. इज इट क्लियर टू यू all the formulas? Okay, so cosec theta is hypotenuse upon opposite side. Tell me the value of cosec theta for this triangle.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा फॉर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी के लिए? AC अपॉन AB, करेक्ट, AC अपॉन AB। ओके, मुझे सेक थीटा का वैल्यू बताओ ये ट्राइंगल के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा? AC upon BC, correct. Hypotenuse upon adjacent side. So all the six trigonometric ratios are clear to you now. Just remember sine and cos formula. Remaining things we can derive it from there. Okay, next we will see the table. Trigonometric identities भी हमने कल देखा है. Just we will have a overlook on it. Okay, first identity is what? Sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is what? Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. And third one is what? Cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Okay. Sarang, you are facing a network issue. Others, my voice is coming to you clear. Please give the response in the chat box. Okay. अभी ये जो टेबल है, आप एक बार ये टेबल को देख लीजिए, फिर हम लोग इसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे. ओके, जस्ट सी द टेबल. On left hand side you can see we have all the six trigonometric ratios, and here at the top side we have different angles, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. आप जब 11th 12th में जाओगे ना, तो आपको 15 डिग्री भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, 25 डिग्री भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, 35 डिग्री भी, 31 डिग्री भी ऐसे भी बोल सकते हैं, 37 डिग्री ऑल्सो. Okay, when you will go in higher class, you will study all the angles. Now for your class, you have only 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. Okay, just see the table. On the left hand side, all the trigonometric ratios are there, and on the top side, all the angles are there. बाकी ये जो अंदर का है, ये इतना portion, ये कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ. For that, I will use the whiteboard now, huh? So all the six trigonometric ratios, what we will do, we will write it here first. So पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, फिर इस पे से बनता है टेन थीटा. जब हम लोग रेशो लेते हैं टेन थीटा का, अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो बनता है कॉट थीटा. फिर सेक थीटा आएगा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और लास्ट में कोसेक थीटा आएगा जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है. यहाँ पे हम लोग सारे एंगल्स लिखेंगे. फर्स्ट एंगल इज 0 डिग्री, नेक्स्ट एंगल इज व्हाट? 30 डिग्री. उसके बाद कौन सा एंगल था? Which angle is there next? 45 degree. 45 degree. Okay, 45 degree. उसके बाद next 60 degree. 60 degree, and at the last we have 90 degree. Okay, तो आपको सिर्फ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के वैल्यूज याद रखना है. अभी वो भी काफी इजी है. देखो, साइन 0 इज व्हाट? 0. ओके, साइन 30 इज व्हाट? इट इज 1/2. साइन 45, ये 1/2 जो है ना, सिर्फ ये डिनोमिनेटर का जो 2 है उसको रूट डालोगे आप. ओके, 1/√2. साइन 60 इज व्हाट? √3/2. ओके, एंड साइन 90 इज व्हाट? 1. बस इतने वैल्यूज आपको याद रखना है. So what is sine 0? Sine 0 is 0. What is sine 30? It is 1/2. What is sine 45? It is 1/√2. What is sine 60? It is √3/2, and sine 90 is 1. अभी cos थीटा के लिए ये जो sin थीटा के वैल्यूज हमने लिखा है, इसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. यहाँ पे आएगा √3/2. ये 1/√2 एज इट इज आएगा क्योंकि ये मिडल प्लेस पे है.
फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0. इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट इन दिस फॉर कॉस्ट? हाँ यस, बोलो. So for sin 60, I have written 3 upon under root 2. It is under root. Oh, sorry. Under root 3/2. By mistake, I have written it. Okay. So, okay. Now it is correct. Thank you for correcting me. Okay, under root 3/2. Next, मैंने आपको क्या बोला था पिछले स्लाइड में ही? tan थीटा क्या है? वो रेशो है sin थीटा और cos थीटा का. तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमने निकाली है ना, यहाँ पे बस इनका रेशोज ले लेंगे और उसको tan थीटा में पुट कर देंगे. तो 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? 0. तो वो यहां पे आ जाएगा 1/2 अपॉन रूट 3/2. 2 कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? 1/√3 आ जाएगा. ओके. अभी ये 1/√2 अपॉन 1/√2 सब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पे. ओके. √3/2 अपॉन 1/2. 2 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? √3. ओके. उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 1/0. मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो वो क्या बनता है? इन्फिनिटी फॉर्म बनता है. यस और नो? यस और नो? मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. ओके. तो यहाँ पे इन्फिनिटी के बजाय हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड. आप जब 11th-12th में जाओगे आप इन्फिनिटी ही लिखोगे यहाँ पे. ओके. अभी फिलहाल आप नॉट डिफाइंड लिखोगे, अभी इन्फिनिटी का कंसेप्ट हमारे इसमें नहीं है. सो नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी ऐसी वैल्यू है जिसको डिफाइन नहीं किया गया है. सो नॉट डिफाइंड. ओके. अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है. तो कॉट थीटा की जो वैल्यूज है, अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यूज लिखना है तो मैं टैन थीटा की जो वैल्यूज है ना उसको रिवर्स में लिखूंगा. जैसे मैंने कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखा था? साइन थीटा की वैल्यूज रिवर्स में. यानी यहाँ पे 1 आया था, फिर √3/2 आया था, 1/√2, फिर ये 1/2, 0. वैसे ही यहाँ पे भी करना है. यहाँ पे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड. ओके. उसके बाद क्या आएगा? हु विल टेल मी द नेक्स्ट वैल्यू? व्हाट विल कम हियर? रूट. Under root 3. ये 1 एज इट इज आ जाएगा. ये आ जाएगा 1/√3 और एट द लास्ट आ जाएगा 0. ओके. टिल हियर एनी डाउट टू एनीवन? We have written the values for sin theta, cos theta, tan theta and cot theta. Now last two are remaining sec theta. मैंने आपको बताया था कि sec theta क्या है? किसका रेसिप्रोकल है sec theta? sec theta किसका रेसिप्रोकल है? cos theta का. तो cos theta की जितनी भी वैल्यूज है उसको बस रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिखना है. तो देखो cos theta की वैल्यूज यहाँ पे है. हाँ, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा. अब √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3. ओके. 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2. √2 अपॉन 1 होगा तो हम लोग सिर्फ √2 लिखेंगे. 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2. 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? चलो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा. और जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है मैंने आपको बोला है कि वो आता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी. तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड. ओके. आप बस सेक थीटा की जो वैल्यूज मिली है ना उसको रिवर्स में लिख दो. यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड. यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 2/√3 और यहाँ पे आएगा 1. And the table is completed. Is it clear to you? Is anyone having any doubt? You can ask me. Daily I upload the videos on YouTube. आप लोग देखते नहीं हो वो अलग बात है. Okay. If you have subscribed to my channel, daily you get the notification of my videos. Each and every
class that we have taken. I have uploaded it on YouTube, but no one sees to it. Just subscribe the channel. No need to get, you will get the notification daily. As soon as I immediately upload the video, आपको notification आ जाएगा उधर. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तब आएगा वो. So अभी मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करके कौन बताएगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल. एज वी आर हैविंग 2 periods, आई एम गोइंग टू टेक द क्लास कंटिन्यू. हाँ, immediately if the session gets over, you will have to rejoin the session. So who will tell me how to make this table from start to end? Don't worry, if it is wrong, I will correct it, but you should try it. In exam, you will have to construct this table. As soon as the exam starts, that time you will have to construct this table, because all the questions of trigonometry, for that you will require this table. Who will tell me the table? Don't worry, I will correct you. Just try. If it is wrong, Sir, yes, bolo Devyani, very nice. Bolo. sir, first we have to write all the trigonometric ratios in one line, and then 0 degree, Wait, 30 degree, 45. wait. मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आप मुझे बोलते जाइए. Okay, I have written sin theta. Next will come what? Cos theta. उसके बाद आएगा tan theta. उसके बाद आएगा cot theta. उसके बाद आएगा sec theta. और लास्ट में आ जाएगा cosec theta. हाँ, अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको? Sir, we have to write 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. Okay, 60 degree and 90 degree. We have written all the angles. Next. Sir, after that, in sin theta, under 0 degree, we have to write 0. Because Under sin 0 is 0. degree, we have ये to देखो write- देवयानी पे अटेंशन. यहाँ पे ये जो थीटा है ना, थीटा, साइन थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो साइन 0 विल बिकम 0. इसका मीनिंग ऐसा है. ओके, जब ये थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. अभी नेक्स्ट वैल्यू बोलो मुझे. Sin 45 is 1/√2. करेक्ट. Sin 60 is √3/2. Correct. And sin 90 is 1. साइन 90 is 1. ओके, ये हम सब प्रूफ कर सकते हैं. बोला आई कैन प्रूव ईच एंड एवरी वैल्यू. साइन 0 0 क्यों आ रहा है, साइन 30 1/2 क्यों आ रहा है, साइन 45 1/√2 क्यों आ रहा है. वी कैन प्रूव दिस. ओके, इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट आल्सो. अभी बट आप ज्यादा डेप्थ में अगर जाओगे ना, फिर आप खुद को कंफ्यूज कर लोगे. सो कीप इट लिमिटेड ओनली. जितना आपको जरूरी है उस पे ही फोकस कीजिए. ओके, अभी cos थीटा की वैल्यूज कैसे आएंगी देवयानी? Sir, we will simply reverse all the sign values. ओके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा पहले. उसके बाद √3 Sir, बाई, √3/2. यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और लास्ट में 0. यानी साइन थीटा की जो वैल्यूज थी ना, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दी बस cos थीटा के लिए. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट tan थीटा. मैंने Yes, sir. आपको क्या बोला था? tan थीटा किसका रेशो है? Sir, sin theta and cos theta. करेक्ट, इट इज द रेशो ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा. तो यहाँ पे बस ये बीच में ऐसा साइन डाल दो और रेशो ले लो और नीचे लिख दो. कितना आएगा फिर? 0/1. 0. करेक्ट. 1/2 अपॉन √3. Sir, 1/√3. करेक्ट, 1/√3. Here 1. 1. Okay, here under √3. Correct. And here at the last
Sir, it is not defined as it is infinity when the denominator is 0. Correct. When the denominator is 0, that time it is infinity form या फिर not defined. अभी cot theta कैसे लिखूं? Sir, in cot theta, we have to reverse all the values of tan theta. Correct. Not defined पहले आ जाएगा. Next आएगा अंडर रूट 3, नेक्स्ट आएगा 1, नेक्स्ट आएगा 1/√3 और लास्ट में आएगा 0. यानी tan थीटा की जो भी वैल्यूज है हमने बस यहाँ पे cot थीटा के लिए उसको रिवर्स में लिखा है. प्रथमेश वल्लकट्टी, इज इट क्लियर टू यू? यू हैव सेंड मी द डाउट इन चैट बॉक्स. ओके. sec थीटा के लिए, sec थीटा क्या है? व्हाट इज sec थीटा? किसका रेसिप्रोकल है वो? देवयानी, किसका रेसिप्रोकल है वो? Is she there or not? Yes. किसका रेसिप्रोकल है? आगे का पार्ट कौन कंटिन्यू करेगा? Who will tell me? Oh, sorry, I got it. ओके. हाँ. sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? Of cos theta. ओके. तो cos थीटा की जो वैल्यूज रहेंगी उसको हम बस रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखेंगे. तो 1 का रेसिप्रोकल क्या है? 1. √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3. 1/√2 का रेसिप्रोकल है √2. 1/2 का रेसिप्रोकल है 2. 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे. Okay, and for cosec theta just write the values of sec theta in reverse order. So पहले आएगा not defined, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा √2, उसके बाद आएगा 2/√3 और लास्ट में आएगा 1. Is the table clear to you? This table is very 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 important because your total 15 marks of this chapter trigonometry are based on this table only. Okay, so we will continue with the further part. Now we will start the exercise 8.1. Okay, so this is the table. Now exercise 8.1. See the first question. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24, BC is equal to 7. Determine the value of sin A cos A. Okay, comma है बीच में. And second में sin C cos C का वैल्यू निकालना. तो पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे. First we will draw the figure. Okay, so this is my figure. See, it is right angled at B, huh? So we will have to draw the right angle at B only. So यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे C आया. तो मुझे बोलो, क्या हम लोग एंगल B को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं? Can we apply to angle B? No, we can only apply the trigonometric ratios to angle A and angle C. Okay. So now AB is equal to 24. I will write it here. AB is equal to 24 centimeters. BC is equal to 7 centimeters. Okay. BC is equal to 7 centimeters. तो हमको hypotenuse भी लगेगा ना अभी. So how we can get the hypotenuse now? By Pythagoras theorem. Correct. So in triangle ABC, first we will find the hypotenuse because we will require the value of hypotenuse. In triangle ABC, which angle is 90? Angle ABC is equal to 90 degree. Okay. So therefore, by Pythagoras theorem, what we can write? AC square, which is equal to AB square plus BC square. This is our Pythagoras theorem. तो AB का वैल्यू है मेरे पास 24, उसका होल स्क्वायर. BC का वैल्यू है मेरे पास 7, उसका होल स्क्वायर.
24 का स्क्वायर है 576. सी वन थिंग आई विल सजेस्ट टू यू, आप लोग एटलीस्ट 30 तक सारे स्क्वायर्स याद कर लीजिए. what will happen, it will reduce your calculation time in exam. ओके क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एट द एंडिंग, सर मुझे तो टाइम ही नहीं पूरा, दिस क्वेश्चन इज मिसिंग, ये बाकी था वो बाकी था. सो बेटर वे, यू लर्न द स्क्वायर्स टिल 30. इट विल हेल्प यू, इट विल रिड्यूस योर टाइम. 7 स्क्वायर इज 49. इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 625. और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. AC का भी वैल्यू हमारे पास आ गया अभी 25 सेंटीमीटर. ओके, आई विल शेयर द अटेंडेंस लिंक फर्स्ट. तो AC का वैल्यू आ गया 25. अभी मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट वन में मुझे साइन A निकालना है. ओके, साइन A, तो ये एंगल A है मेरा. ओके ओके, थीटा के जगह पे एंगल एंगल बी नहीं लेंगे हम लोग, एंगल AC कुछ भी आ सकता है थीटा की जगह. तो साइन A, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. या फिर साइन A, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइन A. मैंने AB upon AC. नहीं, आई वांट द फॉर्मूला. फर्स्ट यू विल राइट द फॉर्मूला, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. This is the formula. Okay, now you will put the values. So sin A will be what, opposite side is what, BC. ये एंगल A का अपोजिट देखना पड़ेगा, यू हैव टोल्ड इट रॉन्ग. ओके, एंगल A का अपोजिट है BC और हाइपोटेनियस है ये ट्राइंगल का AC. तो BC का वैल्यू है मेरे पास 7 और हाइपोटेनियस का वैल्यू है मेरे पास 25. तो साइन A का वैल्यू क्या है, 7/25. इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, who will tell me the value of cos A now? पहले फॉर्मूला बताना है आपको, बाद में आंसर. What is the value of cos A? Adjacent side upon hypotenuse. Correct. Adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. तो बोलो adjacent side क्या है? एंगल A का adjacent side, हाँ? AB. AB upon AC. AB upon AC. Correct. तो AB का वैल्यू कितना है? 24/25. So this is the answer of cos A. Okay. Next, sin C. Tell me the value of sin C. I will erase this. What is the value of sin C? AB upon AC. ओके, तो साइन सी, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. सी, मैं ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लिखते लिखते ही आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसको लिखोगे तो ये अच्छे से दिमाग में रहेगा. आप अगर डायरेक्टली दूसरा स्टेप लिख दोगे, डायरेक्टली उसका आंसर लिखोगे, तो आप भूल सकते हो फॉर्मूला. इट्स योर रिस्क देन. ओके, so opposite side upon hypotenuse. So opposite side is what, of angle C now. Angle C, इसका opposite side क्या है? AB. और हाइपोटेनियस है AC. तो AB का वैल्यू है 24 और हाइपोटेनियस का वैल्यू है 25. सो 24/25.
तो यहां से क्या समझ में आया आपको? एंगल ए का जो कॉस का वैल्यू था, यू कैन चेक इट हियर, यू कैन चेक इट हियर, एंगल ए का जो कॉस का वैल्यू था वो एंगल सी का साइन का वैल्यू है। ओके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ेंगे, बिकॉज दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये 90 डिग्री का हो गया, तो बचे कौन से? एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे ना, फिर इनका सम भी 90 आएगा, एंगल ए और एंगल सी का। तो साइन ए, suppose sin 90 minus a, okay, sin 90 minus a will be what? cos a। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आता है। यहां पे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि sin a का जो वैल्यू था, सॉरी cos a का जो वैल्यू था, इट बिकेम द वैल्यू ऑफ sin c। ओके ये हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू आया था उसका, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसको। Okay, next, who will tell me the value of cos C? I will directly write the answer now. You will write the formula, everything. I am directly writing the answer. Cos C. Adjacent side upon hypotenuse equals to BC upon AC Okay. equals to 7 upon 25. 7 upon 25. This is the value of cos C. Okay. अभी अगर कोई पूछेगा tan A, tan C, cot A, cot C, सब कुछ निकाल सकते हैं अभी हम लोग यहाँ से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। If the session gets over, you will immediately join the session. Huh? There is a figure for this question. Okay. Now triangle PQR is there. It is a right angle triangle of which two sides are given. One side is not given. So first of all, what we will do, we will find that side, unknown side QR. So how we can get that unknown side QR? By Pythagoras theorem. What is the value? Tell me the value of QR by applying Pythagoras theorem. 5 centimeter. Correct. Okay. So in triangle PQR, angle PQR is equal to 90 degree. So therefore, by Pythagoras theorem, what we can write? PR square, which is equal to PQ square plus QR square. Okay. तो PR का वैल्यू हमारे पास 13, इसका होल स्क्वायर, PQ का वैल्यू हमारे पास 12, इसका होल स्क्वायर, और QR का होल स्क्वायर। तो 169, ये 144 प्लस QR स्क्वायर। ओके तो QR स्क्वायर कितना आएगा फिर? इट विल बी what? 169 minus 144, it will come 25. So QR will come what? 5. Okay, QR will come what? 5 centimeter. QR मिलने के बाद हमको क्या चाहिए? tan P. ओके तो पहले tan P निकाल लो आप साइड में। व्हाट इज tan P? ये एंगल P, इसका tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। Opposite side upon adjacent. Opposite side upon adjacent side. So I will write the formula first. Upon adjacent side, तो अपोजिट साइड क्या है उसका? एंगल P का अपोजिट साइड है 5। हम लोग पहले साइड लिखेंगे, QR है और एडजेसेंट साइड है PQ। तो 5 upon 12 will be the value of tan P. Similarly, find out the value of cot R. First tell me what is the formula of cot R. It is the reciprocal. तो ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसका उल्टा कर दो, एडजेसेंट साइड ऊपर आएगा और अपोजिट साइड नीचे आएगा। तो एंगल आर पे फोकस करना है अभी, क्योंकि हम लोग कॉट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं अभी,
वो फॉर एंगल आर निकाल रहे हैं, तो एंगल आर का एडजेसेंट साइड है क्यू आर और अपोजिट साइड है पी क्यू। तो क्या आ रहा है ये 5/12। तो ये दोनों पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan p माइनस cot r, इट इज इक्वल टू व्हाट 5/12 माइनस 5/12। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा 0। If it was like this, tan p plus cot r, what is the answer then? Tan p plus cot r.